on the dais, Baldev Prabhuji, Dr. Rajendra Shinde, Dr. Father Arun D'Souza, Jessica Merritt, and Dr. Sumanta Mitra. Scholars, friends, students, well-wishers, and my family members. My humble pranams to all. I stand before you today with a heart filled with gratitude and excitement as we gather to celebrate the book launch of a narrative analysis of Bhagavata Purana. It is an immense pleasure to share my thoughts and insights on this journey that has led us to this moment. I was teaching Bhagavata Purana to my master's students. It captivated my mind, heart, and intellect. The Bhagavata Purana, also known as Srimad Bhagavatam, holds a unique position among the sacred texts of ancient Indian literature. It is not just a religious scripture, but a treasure trove of philosophy, spirituality, morality, folk tales, and legends. As a narrative of love, devotion, and enlightenment, it captivates the hearts and minds of countless readers across cultures and ages. It is said about Bhagavata Purana that it is the fruit of Vedic desire tree. It was rightly described by Baldev Prabhuji. So it is said that Nigama Kalpa Taroho Galitam Phalam Shuka Mukhat Amruta Drava Sanyutam Pibata Bhagavatam Rasamalayam Muhuhu Aho Rasikaha Bhuvi Bhavikaha. It is a fruit of Vedic desire tree containing ambrosial juice and has issued from the mouth of Shukadev. So it is said that, O Rasikas, O devotees, drink again and again the reservoir of Rasa, the Bhagavata. Bhagavata Mahatmya says that Bhagavata is the essence of Vedas and Upanishads. Bhagavata is considered as the fruit of Vedic tree. Now there is rasa, that is essence, in each and every part of the tree, but it can be tasted only through the fruit. So Bhagavata is that fruit. So the rasa of the Vedas, Upanishads can be tasted through Bhagavata alone. Taittiriya Upanishad says, Raso vai saha. Here rasa is nothing but the ultimate reality, that is Brahman. Lord Krishna is not just avatar in Bhagavata Purana, but he is observed as Purna Brahma, absolute Brahman in Bhagavata. Bhagavata Purana is a rich treasure house of narratives. There are a series of connected narrations with different occasions, different narrators, as well as audiences. The chain of narrators is employed to link different narrations in the same thread. Bhagavata can be called as a grand narrative. It has very complex narrative structure. Vyasa is considered as a traditional author of all the Puranas. Sutta is addressing seers of Naimisharanya. At each narrative level, there is change in narrator as well as the audience. Thus, there are several signs of oral narratives in the text. This factor has retained certain folk elements in Bhagavata Purana in the midst of philosophy. As a significant feature of oral narrative, there are ample techniques used to arouse the interest of the listener, that is Shrotru, to teach philosophy and morals. So we can see that in the philosophical text, we see the Siddhantas, that is theories. But in Bhagavata, all these philosophical theories comes through various stories, miraculous stories. So Bhagavata, like all the Puranas, has unique way of teaching morals and philosophy. The 10th skanda of the Bhagavata can be considered the very soul of the Bhagavata Purana. Though stories are very popular, the meaning of some narrative was an enigma. While teaching this to students, I realized that each episode of the 10th skanda has multiple layers of meaning. Bhagavata is multi-layered text. What we can easily get is the superficial meaning.
But if we want to understand the real essence of the Bhagavata, we have to read it again and again and understand the deeper meaning of it. So that opportunity came with the World Sanskrit Conference 2015 held in Bangkok, Thailand. I presented a paper on exploring various meanings of Putana episode of Bhagavata Purana. While working on this paper, I was fascinated because I could see Putana from multifarious angle. Because now we just understand Putana as one female demon, that's it. But when we read Bhagavata, Putana is often referred to as Balagrahi or Balaghatin, that is child scissor. So that reference comes again and again. So that is where I realized that this is the narrative code to decode this text, this narrative. Now, while doing the cross-reference work, I realized that there is a section on Balagrahas in Ayurvedic text like Sushruta Samhita, where Putana is also mentioned. It means Putana was a kind of disease which affects the newly born child. I was wondering what is the etymological meaning of the word Putana. So there is one Sanskrit root, pu, means to purify, but the meaning was not befitting. So there is another meaning, pui, which means putrid, that is bad smell. Now surprisingly, the characteristics of Putana disease are mentioned elaborately in Sushruta Samhita, where it is said that child seized by Putana Graha has a bad smell to that child's body. Now Putana gave her milk by breastfeeding Krishna in order to kill him. Sushruta Samhita mentions one of the reasons for Putana disease can be from breastfed milk. It means Putana may be a kind of disease from which child Krishna survived. It was a victory indeed that child Krishna defeated the terrible disease. This gave an allegorical interpretation of Putana episode. Not only this, I have analyzed Putana's transformation into a mother and devotee because Bhagavata mentions this narrative as Putana Moksha and not Putana Vadha. It is not that Putana was killed by child Krishna, but it is Bhagavata takes it as the liberation of Putana. Now the question comes that why Putana was liberated? So the meaning must be that she was a devotee, she was the adhikari of the moksha, she was eligible to get liberation. So we have to solve this riddle. So for that, we get the narrative sign or the code in Bhagavata itself. In Bhagavata it is mentioned that there was a fragrance out of her funeral pyre and all were surprised why there is such fragrance. It means that she received the Sadgati. So this is the narrative sign that it suggests that she got liberated. So while doing this, I have used different tools of intertextuality. How the narrative becomes rich. While traveling from Harivansha, Vishnu Puran, Bhagavata Puran and Brahma Vaivarta Puran. See, Brahma Vaivarta Puran says that Putana is taken to Goloka by gem-studded chariot. Here Putana's salvation is described more elaborately than in the Bhagavata Puran because Brahma Vaivarta Puran comes later than the Bhagavata Puran. So as we go, as we progress chronologically, we can see that Puranic text become rich, more elaborate, more vivid. So when there was opportunity to apply for Hera's fellowship, I applied with the project proposal having an idea to interpret the 10th skanda of Bhagavata Purana. It got shaped in various ways in review meetings conducted by Heras. I really thank then director Professor June Dias who took initiative in this. The 10th skanda of Bhagavata Purana is very important as it's the whole Krishna Charitra. These are the popular stories actually known by everyone, known as Krishna Leelas.
they were just seen as miraculous stories. What's the deep meaning embedded in these narratives? Bhakti is the thread of the 10th skandha. But apart from that, historical, sociological, cultural, and religious elements are reflected in all those narratives. We know from the title itself, Bhagavata, it is about Bhagavan, that is Lord. So naturally, Bhakti is the essence of the Bhagavata. But apart from that, there are various meanings which are reflected, which we cannot ignore. So I felt while going through the pre-existing research material, because many scholars have worked on Bhagavata, there are ample commentaries are available on Bhagavata. So I felt that the toolbox approach would be the right kind of perspective to decode this complex text. Because when I was analyzing Putana episode, I realized that etymological approach is helpful, psychological approach is helpful, similarly scientific approach, because it is mentioned in medicinal text also, so that is also important. But when I came across different narrative, different approach was useful. So I decided to use toolbox approach to decode this complex text, because only single approach may not be sufficient, and it will not give justice to the text like Bhagavata. नरेटिव एनालिसिस ऑफ भागवत पुराण, ऐसा इस पुस्तक का शीर्षक है। इसकी प्रेरणा तो मुझे मिली है जब मैं अध्यापन कर रही थी भागवत पुराण के बारे में। तो भागवत पुराण का अगर हम अध्ययन करते हैं तो हमें दिखाई देता है कि कृष्ण चरित्र यही उसका मध्यवर्ती बिंदु है। कृष्ण चरित्र तो हम कई सालों से, कई पीढ़ियों से सुनते आए हैं। कृष्ण लीलाएं जो है वो हम सुनते हैं, किंतु केवल अद्भुत कथाएं या चमत्कृति इतना ही मान के हम छोड़ देते हैं, और फिर उस पर एक टीका भी होने लगती है, जैसे कि ये तो सिर्फ अद्भुत कथा ही है, इसमें से क्या लेना देना, क्या ये आधुनिक काल से सुसंगत है, क्या ये तर्कसंगत है। तो यह जो पुस्तक है वो वही प्रयास है कि भागवत पुराण में जो कृष्ण चरित्र है, कृष्ण लीलाएं है, उनका अर्थ क्या है। अभी ये अर्थ हमें अलग अलग स्तरों पर दिखाई देता है। सामाजिक अर्थ भी है, तत्वज्ञानिक अर्थ दिखाई देता है, मानसशास्त्रीय हम अर्थ देख सकते हैं। ऐसे विभिन्न अर्थ जो है वो इसकी कथनात्मक मीमांसा करके प्रस्तुत किए गए हैं। जैसे मैंने उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया कि पूतना का जो वध हुआ है बालक कृष्ण के द्वारा, अभी ये जो पूरा प्रसंग है वो हम सुन के एक रोमांचक कथा ऐसे सुन के छोड़ देते हैं। अपितु ये पूतना कौन है, और भागवत जो कहता है कि पूतना को तो मोक्ष मिल गया, पूतना को सद्गति मिल गई, फिर ऐसा क्यों है, क्या भागवत कहना चाहता है। फिर पूतना के मन में भी कोई परिवर्तन हुआ था क्या। भले ही वो आई थी कृष्ण का वध करने के लिए, कंस ने उसे भेजा था, फिर बाद में क्या उसके मन में परिवर्तन हुआ, तो उसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण जो है वो ज़रूरी है। तो उस मनोवैज्ञानिक विश्लेषण में ये दिखाई देता है कि पूतना जब अपना स्तन्य कृष्ण को देती है, उसके मन में परिवर्तन होता है, उसे लगता है यह अद्भुत बालक है, उसमें ममता जाग उठती है, और वह एक हम कह सकते हैं माता बन जाती है। और जो कृष्ण की माता है, जो कृष्ण के स्पर्श से पवित्र हुई है, तो उसको मोक्ष नहीं मिलेगा क्या। ये तो एक इंटरप्रिटेशन हो गया, एक अर्थ निश्चिति हो गई। दूसरी अर्थ निश्चिति मैंने ऐसे की है कि पूतना एक रोग का नाम है। सुश्रुत संहिता में इसका उल्लेख, निर्देश दिखाई देता है। पूतना ये जो है वो स्तन्य से ही फैलने वाला एक रोग है, और पूतना का जो उल्लेख, निर्देश है भागवत पुराण में, वो भी बालक घातिनी,
बालग्रही ऐसे किया गया है। तो दूसरा भी एक एंगल जिसे हम कह सकते हैं, दृष्टिकोण, वो भी दिखाई देता है कि बालग्रही मीन्स देयर वॉज अ बिलीफ ऑन बालग्रहस। एक लोक कथाओं का जो एक लोक कथा है या फिर बिलीफ सिस्टम जो होती है लोगों के, उसमें बालग्रहों पर बहुत श्रद्धा दिखाई देती है। इसलिए जब भी बालक का जन्म होता है 5वें दिन या 6ठे दिन हम कुछ ना कुछ रिचुअल्स जिसे करते, बहुत सारी विधियाँ करते हैं, क्योंकि किसी की बुरी नज़र ना लगे या फिर दुष्ट शक्तियों का स्पर्श न हो। तो ऐसी भी कोई पूतना हो सकती है, इसका भी हमें एक निर्देश मिलता है। सो पूतना वध जो है वो पूतना मोक्ष ऐसे दिखाई देता है भागवत पुराण में। एंड देन आई हैव ट्राइड टू इंटरप्रेट पूतना एपिसोड फ्रॉम मल्टीफेरियस एंगल्स। सो लाइक दिस इन दिस बुक different episodes are analyzed, like birth of child कृष्ण जन्म जो है वो भी बहुत सारी चमत्कृतियों से भरा है। पूतना मोक्ष तो मैंने आपको बताया। फिर यमलार्जुन जो है उनको भी उखाड़ दिया था कृष्ण ने। एक छोटा बालक है वह जो है वो वृक्षों के बीच में से गुजरता है और वो बृहद जो वृक्ष है वो उनका उन्मूलन हो जाता है। तो उनका अर्थ क्या है? फिर बहुत सारे अलग अलग राक्षसों का वध किया, जैसे तृणावर्त है, वत्सासुर है, बकासुर है, अघासुर है, धेनुकासुर। तो उस कहानियों का मतलब क्या है? कालिया मर्दन तो हम जानते हैं, कालिया नाग। फिर उसका जो इंटरप्रिटेशन इस बुक में मैंने किया है वो सामाजिक दृष्टिकोण से किया है कि और एक अलग भी दृष्टि दिखाई देती है, जैसे हम अभी एनवायरमेंटल एस्पेक्ट को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, पर्यावरण दृष्टिकोण। क्योंकि कालिया ने पूरा जो एक वाटर रिजर्वायर था, एक जल स्रोत जो था वो पूरी तरह से बिगाड़ दिया था। सामान्य लोग जो है सामान्य जो है वो उसका उपयोग नहीं कर पा रहे थे, वो कृष्ण ने उसे मुक्त कर दिया। सो ही कम्स एज अ फोक हीरो ऑल्सो। एक लोकनायक के मतलब लोकनायक के रूप में भी कृष्ण सामने आता है। में स्पिरिचुअल मीनिंग तो है ही, आध्यात्मिक मीनिंग तो है ही, दिखाई देता है। भागवत की हर एक कथा में आध्यात्मिक अर्थ है, उसके बावजूद कौन कौन से अर्थ है हम देख रहे हैं। फिर गोवर्धन पर्वत को उठाना, एक ही उंगली पे वो उठाते हैं, उसका क्या अर्थ हो सकता है, ये भी मैंने इस पुस्तक में बताया है। फिर गोपी चीरहरण और रास पंचाध्यायी, ये महत्वपूर्ण बहुत ही प्रसंग है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी टीकाएँ हमें उपलब्ध होती है, टिप्पणियाँ की जाती है कि अश्लील प्रसंग है। लेकिन फिर अगर हम भागवत पढ़ेंगे तो दिखाई देगा कि ये जो प्रसंग लिखे गए हैं या कहे गए हैं, कथन किए गए हैं, वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ही कथन किए गए हैं। मतलब कथन शैली जो है वो ऐसी रखी गई है कि हमें उसका जो अंतर्निहित अर्थ है उसके प्रति जाना होगा। तो गोपी चीरहरणम और रास पंचाध्यायी, ये आध्यात्मिक अर्थ ही हमें लेने पड़ते हैं, व्यावहारिक उसका अर्थ नहीं हो सकता है। फिर भी रास क्रीड़ा की वजह से हम कृष्ण को हमेशा पहचानते हैं कि कृष्ण और रास क्रीड़ा एक अविभिन्न संबंध है। तो क्या ये संबंध है? एक्चुअली दैट इज़ मधुरा भक्ति। क्योंकि गोपी जो है वो सामान्य स्त्रियां नहीं है, गोपियाँ जो है वो मुक्त जीव का एक प्रतीक है। अभी ये मुक्ति की संकल्पना ही अलग है। मुक्ति यानी क्या? मतलब ये जीवन से मुक्त हो जाना, उतना ही मुक्ति का या मोक्ष का अर्थ है क्या? नहीं। भागवत के अनुसार मोक्ष यानी उस भगवान के साथ रममाण होना, उसके साथ कुछ संबंध प्रस्थापित करना। तो भागवत के अनुसार यशोदा, नंद, सारी गोपियाँ, ये सारे मुक्त जीव है और मुक्ति का आनंद ले रहे हैं। मुक्ति यानी आनंद, इट इज़ अ टोटल ब्लिस। व्यावहारिक जीवन में हम सुख दुख सभी का अनुभव करते हैं, आनंद नहीं अनुभव कर सकते। प्योर ब्लिस इज़ नॉट अवेलेबल टू अस। लेकिन मुक्ति यानी सिर्फ आनंद। और ये जो एपिसोड्स है गोपी चीरहरणम रास पंचाध्यायी, दे टॉक अबाउट दैट रिलेशन, दैट स्पेशल रिलेशन ऑफ मधुरा भक्ति, वेयर यू सी गॉड एज योर लवर। आप भगवान को आपके पति के रूप में देखते हैं, क्योंकि पति पत्नी का जो संबंध होता है वो एक अलग स्तर पे होता है, तन्मयता का होता है। ऐसा संबंध हमें प्रस्थापित करना चाहिए भगवान के साथ। यह संदेश ये दो जो प्रसंग है वो देते हैं। फिर कुब्जा का प्रसंग भी यहाँ पे बताया है। रुक्मिणी स्वयंवर एक प्रसंग जो है उसका मैंने एकनाथ का जो एकनाथ जी जो है
जिनका महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो एकनाथ जी का रुक्मिणी स्वयंवर नाम का ग्रंथ है। तो भागवत के से प्रेरित होकर एकनाथ जी रुक्मिणी स्वयंवर लिखते हैं। तो कैसे वेरिएशंस आए हैं, कैसे उसमें अलग अलग भिन्न प्रवाह आए हैं, एकनाथ जी का और तत्वज्ञान हमें क्या दिखाई देता है, वो भी इसमें स्पष्ट किया गया है। फिर स्यमंतक मणि का एक प्रसंग आता है कि कृष्ण पर चोरी का आरोप लगता है। तो फिर ये क्यों लगा? अगर कृष्ण को भगवान मानते हैं, भागवत पुराण में अगर कृष्ण को स्वयं ब्रह्म ही माना गया है, तो ऐसा प्रसंग क्यों आ गया, इसकी भी मीमांसा की गई है। क्योंकि फिर हरिवंश, जैसे कि ये किताब जो है इसमें हरिवंश, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण और उसके बाद भी जैसे मैंने अभी वारकरी संप्रदाय के बारे में बताया, उसमें जो एक विभिन्नता आई है कथानकों के बारे में, कथानकों के विषयों में, उसकी मीमांसा भी की गई है। फिर एक श्रीदामन प्रसंग जो है, जिसे हम सुदामा के नाम से जानते हैं, कि सुदामा जो है वो कृष्ण के पास जाते हैं कुछ मांगने के लिए, लेकिन कुछ मांग नहीं पाते और लौट के आते हैं तो उनको दिखता है सब ऐश्वर्य मिल चुका है। तो ये भी एक चमत्कृति पूर्ण प्रसंग है। तो ये क्या है चमत्कृति? तो इसका एक तर्कशुद्ध विवेचन जो है वो किया गया है, संशोधनात्मक विवेचन जो किया गया है, और इसके लिए जो एक मेथडोलॉजी उपयुक्त की गई है वो है नरेटिव एनालिसिस, यानी कथन शास्त्रीय विश्लेषण। तो भारतीय कथन शास्त्रीय सिद्धांत, उसका उपयोजन किया गया है। उसके ही साथ साथ पाश्चात्य समीक्षक जो है, जैसे जेनेट, रोला बार्थ, उनके जो सिद्धांत है उनका भी उपयोजन यहाँ पे किया गया है। तो इस कुछ नरेटिव्स के माध्यम से, कुछ प्रसंग, भागवत के कुछ प्रसंगों के माध्यम से ऐसा एक प्रस्थापित करने की कोशिश की है कि पुराण यानी केवल चमत्कृति पूर्ण कथाएं, ऐसा नहीं है, उनमें कुछ अर्थ है। तो कभी तत्वज्ञानात्मक अर्थ है, कभी सामाजिक कुछ तत्व उसमें छुपे हैं, कभी कुछ मॉरल टीचिंग जिसे हम कहते हैं, नैतिकता जो है वो भी वो सिखाते हैं, या कभी कोई हिस्टोरिकल प्रिंसिपल हम जिसे कहते हैं, कोई ऐतिहासिक संदर्भ, एक घटना घट गई थी लेकिन उसे कहने का जो एक कहने की जो पद्धति थी पुराणों की वो अलग थी। अब हमें इतिहास जो अब हमें पढ़ाते हैं वो एक अलग दृष्टिकोण से पढ़ाते हैं। जैसे कि क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री हम पढ़ाते हैं, वी हैव क्रोनोलॉजीज विच हैपेंड इन दिस ईयर, दैट ईयर, एक्सेट्रा। बट तभी जो शैली थी हमारे प्राचीन इतिहासकारों की जो शैली थी, जिन्होंने रामायण महाभारत लिखी या फिर पुराण व्यास जी ने ही लिखी ऐसे कहा जाता है, तो ये शैली जो थी वो कथनात्मक शैली थी। जो एक तत्व बताना है इतिहास में घटा हुआ, तो वो कैसे बताना है? कथाओं के माध्यम से बताना है। तो कथाओं को सिर्फ हम मनोरंजन का साधन नहीं कह सकते हैं, उसमें कुछ बहुत सारे गहन तत्व छुपे हुए हैं, वो हमें जानना चाहिए। इसका प्रबोधन ज़रूर ये पुस्तक कर पाएगा, ऐसी मेरी मनीषा है। इस किताब को लिखने के दौरान उसकी स्रोत क्या रही, कहाँ से आपको ये सब थॉट्स वगैरह कैसे? मेन सोर्स तो था भागवत पुराण, फिर उसके ऊपर बहुत सारे व्याख्याएं लिखी गई है, जैसे कि अद्वैत, द्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, अचिंत्य भेदाभेद, इन सभी संप्रदायों के आचार्यों ने इस पे व्याख्याएं लिखी गई है। तो इन व्याख्यानों का तो मैंने आधार लिया ही है। फिर हरिवंश, विष्णु पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण और कुछ अलग अलग जो ग्रंथ है उसका भी एक स्रोत आधार उपयुक्त किया गया है। फिर बहुत सारे सेकेंडरी सोर्सेस, जिन्होंने भागवत पर पहले रिसर्च किया है, पहले संशोधन किया है, वो तो देखना ज़रूरी है, क्योंकि वो भागवत के बारे में क्या कहना चाहते हैं, वो इन कथाओं के बारे में क्या कहना चाहते हैं, उन्होंने इनका अर्थ क्या जाना है और मैं क्या इसके बारे में बोल सकती हूँ। तो इसके लिए बहुत सारे दुय्यम जो स्रोत है, यानी पाश्चात्य संशोधक और उसके ही साथ साथ भारतीय संशोधक का भी बहुत सारा मार्गदर्शन इस बारे में उपलब्ध हुआ है। लोगों तक कैसे पहुंचेगी, क्या ऑनलाइन भी? यस, लैंग्वेजेस में आएगी? अभी तो सिर्फ अंग्रेज़ी में है और इट इज़ अवेलेबल ऑन अमेज़ॉन, एक्सोटिक इंडिया आर्ट, फिर देव पब्लिशर की वेबसाइट पे भी उपलब्ध है।
तो इन सभी से पुस्तक ऑर्डर की जा सकती है। लैंग्वेजेस भी प्लान है। मे बी इन फ्यूचर, भविष्य में शायद इसका प्रयास कर सकती हूँ, क्योंकि एक मुझे इसमें दिखाई दिया, ये बुक तो संशोधन ऊपर मतलब संशोधन पर बुक पुस्तक है, फिर भी सामान्य जो एक वाचक वर्ग है उसे भी बहुत सारी जानने की जिज्ञासा है कृष्ण चरित्र के बारे में, कृष्ण लीला के बारे में, क्योंकि वो हमारे क्या कह सकते हैं, हमारे रग रग में अनुस्यूत है कृष्ण चरित्र। हम जानते ही है, बचपन से सुनते आए हैं उसमें, तो उसका अर्थ क्या हो सकता है, सामान्य वाचकों की भी जिज्ञासा है। तो डेफिनेटली इन फ्यूचर आई विल डेफिनेटली प्लान टू ट्रांसलेट इट और राइट यूज़र फ्रेंडली बुक विच विल बी टेकन। पार्ट का भी इंतजार है। हाँ, क्योंकि इसमें अभी मैंने प्रसंग बताए वो सिलेक्टेड ही थे, क्योंकि उसमें बहुत सारी मीमांसा करनी थी। तो अभी तो मैं ऐसे एक सोच रही हूँ, लेकिन बाय कृष्ण लॉर्ड कृष्णज ग्रेस इफ़ पॉसिबल मैं चाहूँगी कि, और क्योंकि भागवत तो एक अथांग समुद्र की तरह है, तो उसमें से और भी मैं कुछ प्रसंग लूँ, और तो देखेंगे 2 वॉल्यूम्स या 3 वॉल्यूम्स में भी शायद ये प्रकाशित हो सकती है।